গুরুজির আদেশ অনুযায়ী দু চার কথা আপনাদের সামনে বলতে চাই। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা সকাল থেকে এখন পর্যন্ত অধীর আগ্রহে গুরুজির প্রবচন শোনার জন্য, আমরা অমৃতবাণী শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। ঠিক তার আগে এই আমার মতো এইরকম বক্তাকে বলতে দেওয়া মানে আপনাদের মনের প্রতিক্রিয়া কি জানি। আপনারা জানেন আমাদের এখানে অনেক বড় বড় সঙ্গীতের আসর হয়, বড় বড় আর্টিস্ট আসে, কিন্তু কিছু ওই লোকাল যারা আছে তাদের গায়ককে তুলে দেওয়া হয়, তখন শ্রোতাদের মধ্যে কী যে দর্শকদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া আমিও মাঝে মাঝে থেকে দেখেছি, যে মনে হয় যে এ আবার এখন উঠলো কেন, এর জন্য এখন ঢিলটিলও ছোড়ে অনেক সময়। আপনারা কিন্তু করবেন না, কারণ গুরুজির আদেশ অনুযায়ী আমি এখানে এটা বলতে এসেছি। আমি কোনো কথা বলতে চাই না, আমি শুধু একটা কথা, গুরুজি আমাদের যেটা বারবার বলেন, সৎসঙ্গের মাধ্যমে বলেন, আমি সেই কথাটাই শুধু আমি এখানে বলতে চাইছি। গুরুজি সব কিছুই বলেন যে সমস্ত কিছুর সময়, টাইম ফিক্স থাকে, টাইম ফিক্স থাকে। যেমন দেখুন ট্রেনের টাইম, প্লেন ছাড়ার টাইম, স্কুল কলেজে সমস্ত সময়, সমস্ত টাইম স্থির থাকে। আমরা আমাদের আজকের এই প্রোগ্রাম যে সঞ্জীবনী উৎসব, সেই সঞ্জীবনী উৎসবের প্রোগ্রামও আমরা স্থির করেছিলাম আগেই, অনেক আগে, এবং আপনাদের সবাইকে সেই সময় জানানো হয়েছিল। এবং গুরুজি নিজে যখন এইখানে এসেছেন সময় মতো, তখন কিন্তু আমরা সবাই সেই সময়টাকেই আমরা উপেক্ষা করেছি। আমরা কেউ সময় মতো এই জায়গায় আসতে পারিনি, কিন্তু গুরুজি বারবার বলেছেন সময় স্থির থাকে এবং সময়ের মধ্যেই সবাই আসবে। সময়ের মধ্যে অনেক সৎসঙ্গে এই টাইম সম্বন্ধে উনি অনেকবার বলেছেন, কিন্তু এত বলার পরেও গুরুজির এর পরে গুরুজি নিজে আছেন, অথচ আমরা একবার নিজের মনের মধ্যে চিন্তা করে দেখি যে আমরা এই সময়টাকে সঠিক দাম দিতে পেরেছি কি না। আমরা কি পেরেছি? আজকে যখন এই অনুষ্ঠান শুরু হয়, তখন আমরা কতজন এখানে ছিলাম? আর আপনারা দেখছেন যে এই সকাল থেকে গুরুজি এইখানে বসে আছেন, আমরা এখানে বসছি, গল্প করছি, মাঝে মাঝে বাইরে যাচ্ছি, কিন্তু গুরুজি কিন্তু কোথাও যাচ্ছেন না। এই যে সময় এবং এই যে জন্য আমরা এসেছি, আমরা গুরুর কাছে এসেছি গুরুর ভক্তির জন্য, গুরু ভক্তির এই জন্য যে এসেছি, কিন্তু সেই জায়গাটা আমরা নিজের মনের মধ্যে একবার চিন্তাভাবনা করে দেখি, সেই জায়গাটা আমরা সঠিকভাবে পালন করতে পারছি কি না। সঠিকভাবে পালন করতে পারছি আমরা, সময়ের যে দাম, সে দামটাকে আমরা দিতে পারছি। এই জন্য আমি মনে করব যে আমার অনুরোধ, যে আমরা সবাই এই ব্যাপারে আমরা নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করে দেখি, যে তাহলে গুরুর কাছে গুরু ভক্তির জন্য এসেছি, গুরু যে কথা বলছেন, অথচ গুরুর আদেশ পালন করাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র কর্তব্য, সেই জায়গা কি আমরা সত্যি পালন করতে পারছি? এই জায়গাটাই শুধু আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা নিজের মনের মধ্যেই জিজ্ঞাসা করুন, করার পরে আগামী দিনে কোনো অনুষ্ঠানে আমরা যাতে এর পরের এই নিজের মনকে জিজ্ঞেস করার পরে ওই জায়গায় যদি আপনারা আসতে পারেন, তবেই হবে সঠিক গুরুর ভক্তি। নমস্কার। মুকুল সরকার, অজিত দাস। এদিকে আগে মুকুলকে ই করো তাহলে। অজিত, অজিত দাস। অজিতকে নেই। ডক্টর সোমা মুখার্জি হয়েছে? ঠিক আছে, ঠিক আছে। ছোটু না, কাগজটা দিচ্ছি, নাম লেখা আছে। আর কে আছে? টুম্পা। ওদের হয়ে গেছে, ওদের হয়ে গেছে তো, আর মোটামুটি তো হয়েই গেছে দেখতে পাচ্ছি। আর কে আছে? মোটামুটি সবারই হয়ে গেছে। শর্মী মিশ্র,
তুষারদা আশীর্বাদ পাওয়া হয়ে গেছে তো? ব্যাস, গরম লাগছে বলো। থ্যাংক ইউ। আনন্দী 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 আছে, আনন্দী এসো। যারা যারা পাননি অনুগ্রহ করে চলে আসবেন, কারণ বাবা আমাদের সবার, আর আশীর্বাদ আমরা সবাই পেতে চাই। এখানে নবনীতা চ্যাটার্জি, আনন্দী যারা পাননি সেই সময় অনুগ্রহ করে আসবেন। মেঘা গুহ, আর কি, হ্যাঁ ওই সব ঠিক। আর কে বাকি থাকলো? আর কে আছে? এটাও মধ্যে রয়েছে, ওটা দিয়ে এটা ভালো করে নাও। গুরু বন্দনা মাতাজি আমাদের মহারাজজিকে শাল প্রদান করে আমাদের পক্ষ থেকে সম্মানিত যে করলেন, আমরাই সম্মানিত, আমরাই আদৃত সমাদৃত। ओम अखंडमंडलाकारव्याप्तं ज्ञान चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणा अवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो सखा तमेव विद्यार्थमिदं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णार्थ पूर्णमद उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी।
शिव शिवय हर हरय शिव शिवय हर हरय नारायण हरि ओम नारायण नारायण हरि ओम। हम लोग सभी धरती में आए हैं। ये धरती कर्म भूमि है और मृत्यु लोक भी है। यह भगवान ने लिख दिया जो एकमात्र मनुष्य ही कर्म कर सकता है, ना देवता ना पशु और कोई भी कर्म नहीं कर सकते। कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को दिया गया और जो भी है वो हमारा कर्म का फल हमको ही भोगना पड़ता है। पशु योनि में जाओ क्या देव योनि में जाओ, ये 1,84,000 योनि कीट पतंग पेड़ पौधा कितना जन्म लेते हुए मनुष्य जन्म मिलता है। आपका कर्म आपको ही भोगना पड़ेगा, आपका कर्म और कोई नहीं भोगेगा। इसीलिए भगवान सबको अलर्ट कर रहे हैं। जो मैं कर्म करने का अधिकार तो दे दिया, जो मर्जी करो, लेकिन उसको विचार मैं करूंगा और विचार करके जो फल होगा मैं निरपेक्ष उसको फल प्रदान करूंगा। तब भी भगवान दया का सागर है, वो अपना मनुष्य का ऊपर विशेष कृपा है। कैसे? जब मनुष्य का इतना प्रिय जन्म सृष्टि उसने किया है, जो मनुष्य का हृदय में निरंतर निवास करते हैं। मनुष्य इतना प्रिय है भगवान का, दया करके क्या हुआ, वो सबका हृदय में निवास करने लगा। ईश्वर हो सर्वभूतानि ही देश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सब मनुष्य का हृदय में निवास कर रहा हूं और भगवान का स्वरूप को क्या बोध किया, जो आपका रूप क्या है प्रभु। मैं सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप इस कण कण में विराजमान है। ये तीनों शक्ति सत चित आनंद। साइंस जैसे बोलते हैं जे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमारा इसमें 3 गुण बोलते हैं, सत्य रज तमो। 3 शक्तियां हैं, इससे सृष्टि कर रहे, पालन कर रहे और विनाश कर रहे। ये तीनों शक्ति हर कण कण में विराजमान है। हम लोग अपने से भगवान को अलग सोचता हूं, इसलिए भगवान को नहीं मानता हूं। उसका ज्ञान नहीं है, अज्ञान का कारण वो नहीं मानते। वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, डिग्रीधारी हो, कुछ भी हो, राजा महाराजा चक्रवर्ती राजा हो,
लेकिन जो भगवान को नहीं मानते हैं वो अज्ञानी है, कि भगवान का सत्ता बिना किसी का सत्ता नहीं है। वो सच्चिदानंद स्वरूप सत्ता हमारा देह का अंदर है, इसलिए देह सच है। ये चेतना है, देख रहा हूं, बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, और उसी से मैं आनंद ले रहा हूं। तो ये तीनों शक्ति हमारा अंदर है, इसलिए हम सब कुछ कर पा रहे हैं। और उसी ने दिया उस परम ब्रह्म को जानने का अधिकार। पाके तो बैठे हैं, पाने के लिए आपको कोशिश नहीं करना पड़ेगा, आपका अंदर है, अब ढूंढो, उसको तलाश करो, आपका अंदर कहाँ है। जो दिन मिल जाए उसी दिन आपको सारी दुखों का हमेशा का लेना सूझेगा, और दुख को नाश करके हमेशा के लिए सुख शांति प्राप्त करेगा। अधून दैव सुखम शांति बंधन मोक्ष भविष्यति। तो ये भगवान का शक्ति बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये तो बचपन में मैंने सुना था, लेकिन आज वास्तव में वही अनुभव कर रहा हूं। जो परमात्मा का शक्ति का अनुभव नहीं किया वो कोई धारणा ही नहीं कर सकते जो परमात्मा का शक्ति क्या है। हम तो सुना है, महापुरुष के मुख से सुना है, पढ़ा है किताब में, देख भी रहा हूं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपको कुछ नहीं होगा। किताब पढ़ लो, किताबें सुन लो, किताबें देख लो, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, आपको तो बोलते हैं परमात्मा सच है, वो चेतना है, वो आनंद स्वरूप है, आपका अंदर ही है, आप उसको पकड़िए, आप पकड़ ही नहीं सकते। आदमी कोई मर रहा है, उसको पकड़ के रखो, तो वैसे ही हम विवश है। हमारा सामने कितना आदमी गुजर गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकता। सब इलाज के बाद जब कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहे तो डॉक्टर लोग बोलते अब भगवान को पुकारो, वही मालिक है, बचाने और मारने वाला मालिक वही है, और कोई विद्या वह काम नहीं कर सकते। तो वही हम लोग सुनता हूं, पढ़ता हूं, लेकिन वास्तव में गुरु जी हम लोग को बोला, जो तुम्हारा दुख, कष्ट, अशांति, चिंता, भय से मुक्त होना चाहते हैं, अगर इच्छा दुर्बल है तो वो खत्म नहीं होगा। अगर इच्छा मध्यम है, इधर भी है उधर भी है, तो नहीं जाएगा। भगवान साफ बोल दिया, ते दंदन महानिर्मुक्ता भजन तमांग दृढ़ व्रता। तो मन में कोई द्वंद नहीं होना चाहिए, 100% विश्वास होना चाहिए। जिस विश्वास में थोड़ा सा भी कमी ना हो, और उसमें मोह, अटैचमेंट, इच्छाई सबको बांध के रख दिया इस संसार में। इच्छाएं, भगवान बोलते हैं जिस मेरा को पाने के जो इच्छा रखता है
वही सिर्फ पा सकता है। और वो क्या होता है? वेदी से जग्गई से तपई से चैव दान से जत पुण्य फल प्रतिष्ठितम अतुति सर्वमेदम विदिता जोगे स्थानम मपित चदम। है अर्जुन, जो मेरा को पा लेते हैं वो इस संसार का सारी ज्ञान, सारी शक्ति, सारी ऐश्वर्य का भंडार सब कुछ पा लेते हैं। और जो मेरा ऐश्वर्य को चाहते हैं, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा जस, बस उतना ही मिलता है, आगे उसको कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए वेद पाठ करके कोई मेरे को जान नहीं सकता है, ना हवन करके जान सकते हैं, ना तपस्या करके जान सकते हैं, ना दान पुण्य करके जान सकते हैं। लेकिन जो मेरा को अपने अंदर देखता है और वही सारा दुनिया में देखता है, वही सब कुछ पा लेते हैं। मैं सबके जीव का अंदर हूं और बाहर जगत में कण कण में विराजमान हूं। जो अंदर का ज्ञान हो जाते तो सारा जगत का ज्ञान हो जाते हैं। तो अंदर का ज्ञान जब परमात्मा का आप साथ जोड़ लेते हैं तो बार सारी जगत में आप व्याप्त हो जाते हैं। चलिए, ये तो हमने किताब का, शास्त्र का बात अपने अनुभव करके बता रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है? हम आश्रम में भक्ति करने का जब हमारा अंदर भावना जागृत हुआ तो हमारा अंदर क्या क्या भावना आता था? जैसे हमको तो कोई बोला नहीं, लेकिन भगवान को पाने के लिए एक व्याकुल इच्छा अंदर पैदा हुआ, उसको जानने का इच्छा पैदा हुआ। रात भर बैठ के देखता था सारी जगत में कहाँ है भगवान। मंत्र जप करता था, लेकिन मंत्र करने के बाद भी कोई पता नहीं चला। रात भर सब सोता था, मैं जग के छत के ऊपर बैठ के अपना भगवान को ढूंढता था। जो आसमान में है, ना इधर उधर भूत पिचास जक्षर किन्नर कोई का किसी का डर नहीं है, सब डर से मुक्त है। रात को अकेला छत में जाकर बैठिए आग बंद करके, तब पता चलेगा, मालूम होता है चारों तरफ से कोई आके आपको पकड़ रहे, कोई आपको मार देगा। एक अचानक आग, अंधकार में जाके आग बंद करके बैठिए, जंगल में, गुफा में, पर्वत में, एकांत में जब बैठेंगे तो पहले तो आप डर से ही नहीं बैठ सकते, लेकिन जब भगवान को पाने का व्याकुलता आते हैं तो ये सब डर कुछ भी महसूस नहीं होता है। जो सांप, क्या जहरीली बिच्छू, कुछ भी डर नहीं लगता है। ना कोई पकड़ लेगा, कोई मार देगा, कोई कुछ कर देगा, कुछ भी डर महसूस नहीं होता है। सिर्फ भगवान को पाने के लिए जब आपका हृदय में इतना बल आते हैं, जो आप किसी को देख के डरते नहीं, कोई चीज का आपको आवश्यकता नहीं है। कोई खाने दिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कोई आपको सम्मान किया कि नहीं किया, कोई आपको पूछा नहीं पूछा, आपको कितना हंसी उपहास ठट्टा तमाशा करते हैं, लेकिन आपको कोई असर ही नहीं होता है। जैसे आप भगवान के ध्यान में ऐसे मगन हो जाते हैं जो आपको इस संसार का कोई भी चीज आपको पर असर नहीं होता है। भगवान का नाम
जहाँ होता है तो वहाँ जाके आपको आराम मिलता है, शांति मिलता है, सुख मिलता है। वहाँ जाने आपको कोई किनारा मिल जाए। मैंने हजारों खोजा जहाँ अपने आप ही भगवान मिल जाए कि नहीं, लेकिन नहीं मिला। तब हमको पता चला एकमात्र सदगुरु से इसका प्राप्ति होगा। सदगुरु बिना इस संसार में कोई नहीं बोल सकते मैं कौन हूं। मैं अपने अंदर तो मैं हूं, लेकिन मैं ही खुद नहीं जानता हूं मैं कौन हूं। फिर मंत्र तो किताब में लिखा हुआ है, लेकिन वो सिद्ध मंत्र होना चाहिए, जिस मंत्र से उसने सिद्ध लाभ किया है। वेद उपनिषद सब जगह आपका मंत्र, हजारों मंत्र लिखा हुआ है, लेकिन वो मंत्र अचैतन्य है। और जो सिद्ध महापुरुष का अंदर है वो चैतन्य स्वरूप है। पराशर ऋषि अपना कुंती को वरदान दिया था। पराशर ऋषि दुर्वासा ऋषि ने कुंती को वरदान दिया था, जाओ बेटा, तुम्हारा भविष्य में तुम ये भारत में पटरानी बनोगे, लेकिन तुम्हारा एक दुख है, तुम पुत्र प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तो ये जब संकट आएगा, ये मंत्र दे दिया। ये मंत्र तुम सिमरन करते ही वो देवता आएगा और फल प्रदान करेगा। ये मंत्र तो किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, वो सिद्ध मंत्र था। सिद्ध महापुरुष का मुख से निकला हुआ मंत्र, उसको काम होगा ही होगा। तो इसीलिए वो लोग पहले अपना मंत्र सिद्ध करते हैं। मंत्र कैसे सिद्ध होता है? जैसा आप लोग मंत्र करते हैं, लेकिन मंत्र करने का चीज नहीं है। मंत्र ऑटोमेटिक हो रहे हैं। जब आप उस पराकाष्ठा में जाएंगे तो आप देखेंगे मंत्र नहीं करना पड़ता है। ना माला घुराना, ना हाथ घुराना, ना मन से, ना बुद्धि से, किसी से नहीं। ऑटोमेटिक आपका मंत्र हो रहे, तो वही मंत्र चैतन्य हो जाती है। और उस मंत्र से आप असंभव को संभव कर सकते हैं। किसी को भी आप वो मंत्र दे दीजिए, वो कार्य सिद्ध होगा ही होगा। लेकिन आम आदमी ये समझ में नहीं आते, जो ये सिंपल मंत्र है तो किताब में लिखा हुआ है, और इसमें और उसमें क्या? तो एक में ताकत है, एक में है ही नहीं। बिजली का तार, एक तार बिजली का साथ जुड़ा हुआ है, एक तार ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसमें जोड़ा नहीं, लेकिन दोनों ही तार है पास पास। एक में पावर है, एक में नहीं है। तो इसीलिए आपको अंदर वो शक्ति अपना आप ही जगते हैं। ये जगाने से किसी प्रकार भी जग नहीं सकते। जब ऐसी भावना आपका हृदय में प्रकट होगा, भक्ति का भाव जब आपका हृदय में प्रकट होता, तो अपना आप ही वो मंत्र जागृत होता है। तो हमने अब सदगुरु बोलने से तो कहाँ सदगुरु ढूंढेंगे? हमारा इतना ज्ञान नहीं है तो हम सदगुरु को कैसे पहचानो? हमारा हमसे पहचाना नहीं जाते, उल्टा हमसे ही गलती हो जाती है। हमने इसीलिए सोचा, जो भगवान शंकर जी का भक्ति करता था, तो भगवान शंकर जी के शरण में चला जाओ।
भगवान का शरण में गया तो भगवान को जाते हुए जो मैं चमत्कार देखा तो मैं अनुभव कर लिया मेरा कोई सदगुरु प्राप्ति होगा ही होगा। और 1 साल का अंदर ही मैंने संकल्प किया जो 1 साल का अंदर ही हमको होना चाहिए। और मैं ऐसा भी ये किया जो हम जो बोलेगा मैं वो करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर कुछ भी अनुभूति नहीं होता है तो मैं छोड़ दूंगा। तो गुरुजी ने मिला 1 साल का अंदर ही, और उसने मेरा को जो दिया, बोले देखो तुम जब अपने में आपको देखोगे तो खुद ही अपना खो जाओगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा ये तुम्हारा सत्ता कौन सी सत्ता है। तो मैंने गुरुजी जब दिया तो एक पिन का मापिक तेज लाइट है, इतना तेज था लेकिन एक बिंदु का मापिक था। मैं उस लाइट पे देखते रहे, देखते देखते मैं सारी जगत में फैल गया। मैं भूल गया अपना देह को, अपना देह गिर गया, मेरे को होश ही नहीं, मेरा बोध ही नहीं। जब हमको समझ में आया तो देखा जो चारों तरफ कोई पानी दे रहे, कोई कुछ कर रहे, वो लोग सोचा मैं सेंसलेस हो गया। उसके बाद मेरे को पता चला जो इस लाइट में पूर्ण शक्ति है समा हुआ है। और वही बाद में हमको पता चला ओमकारो बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यान जोगिनम, जो बिंदु में स्थिर हो जाएगा वो सारी ब्रह्मांड में लीन हो जाएगा। लेकिन वो बिंदु में पहुंचने के लिए आपको कितना प्रकार भावना के अंदर पवित्रता, क्रोध, हिंसा, लोभ, लालसा, लांछना, गंजना, अपमान सब कुछ साइड करके आपको पार करना पड़ेगा। हंसी मजाक ठट्टा सभी करेगा, लेकिन आपका लक्ष्य कभी भी एक समय के लिए ना हट जाए। आप लक्ष्य हमेशा स्थिर रहे। हम बोलते हैं हम सच मार्ग में चल रहा हूं, मैं किसी का नुकसान नहीं करता हूं, किसी का बुरा नहीं सोचता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, किसी का नुकसान नहीं करता हूं, तो मैं सच में चलने में इतना बाधा क्यों आ रहा है। चंदन का टीका लगाओ तो सारा दुनिया हंसी मजाक ठट्ठा करने लग जाती। बोले देखो वीर हनुमान आ रहे। हम लोग बोला जो देख रहे वीर हनुमान, वो लोग की उसका हृदय में वीर हनुमान बैठे हैं, इसीलिए वीर हनुमान दिखाई दे रहे। जा देसी भावना तत्सत्य ता देसी, जिस प्रकार भावना लेके देखेगा उसी प्रकार उसको मिलेगा। हमारा तुम लोग हनुमान का भक्त हो, इसीलिए वो हनुमान ही दिखाई देते। हम तो तब उस समय कॉलेज में पढ़ता था तो कितना प्रकार हंसी ठट्टा मजाक करता था, लेकिन मेरा को कोई असर नहीं होता था। हमारा वाला बीड़ी सिगरेट गांजा पीते हुए सिर उठा के चलता है, दारू पी के सिर उठा के चलता है, तो मैं तिलक लगा के सिर नहीं झुकाऊंगा? हाँ, वो लोग को प्राउड फील करते हैं, देखो मैं कितना मॉडर्न हूं, तो मैं तिलक लगा के मॉडर्न क्यों नहीं बन सकता?
मैं सच मार्ग पे चल रहा हूं तो मेरा को कितना कुछ बोलते रहते हैं, मैं उसको कोई असर नहीं होता। मैं तिलक लगा के जाता था, बोलो बोल बोल के थक जाएगा। सब कोई बोले इसका दिमाग पागल हो गया, कोई बोलता है भाई सिगरेट भी पीते नहीं, ये देखो पार्टी करते नहीं। तो जो करते हैं वो बहुत ग्रेट है, वो लोग बहुत ग्रेट है। और जो हम सच मार्ग में चलता हूँ वो हम लोग बेवकूफ़ है, हम लोग पागल है, हम लोग गधा है। ये है हमारा यहाँ का पक्का है। अरे इस उम्र में कोई भक्ति करते क्या? जब बुढ़ापा हो जाएगा, दांत टूट जाएगा, तब हरे कृष्ण जगह हरा हरा कृष्ण होगा। दांत नहीं रहेगा तो हरे कृष्ण कैसे बोल सकते? दांत फाका हो गया तो हरा कृष्ण बोलेगा, हरा हर गया। तो ये सब तो हमने बोला देखो मृत्यु का कोई उम्र नहीं होता है। ये जो 10 साल का लड़का पड़ोसी में मर गया तो भगवान का नाम क्या बुढ़ापा के लिए इंतजार करेगा? किसी भी उम्र से भगवान का नाम लेने का अधिकार सबका है। इसीलिए ध्रुव ने, आदि को शंकराचार्य ने, चैतन्य और सब बचपन से अपना भक्त बन गया। तो ये भक्ति का क्या उम्र होता है? लेकिन हम लोग एक आइडिया बना लिया, अरे जब रिटायरमेंट आएगा, जब दांत फाट टूट जाएगा, मीट मछली खा नहीं पाएगा, हजम नहीं होगा, तब हरे कृष्ण करना। जब हजम नहीं होगा, नींद नहीं आएगा, तो उसी टाइम तो अपना हरे कृष्ण। चलो वो तो कोई बात नहीं है। तो भक्त का हृदय में इस संसार का कोई भी असर उसका पर नहीं होता है। और दूसरा होता है भगवान को पाने के लिए एकांत में जाके उसको पुकारते हैं, इंतजार करते रहते हैं, रात भर छटपटाते हैं, सोते नहीं, भगवान का नाम करते रहते हैं। और जब उसको मिलता है उस आनंद में वो मगन हो जाते हैं। तो जब मगन होता है तो उसको एकांत में अच्छा लगता है। एकांत में बैठ के भगवान का शक्ति का महिमा अनुभव करते हैं। आंसू अपना आप ही आते हैं। उसको कोई दुख कष्ट नहीं, भगवान को मिलने के बाद ही उसको हृदय भगवान का नाम सुनते ही हृदय रोमांचक हो जाते हैं, शरीर सब रोमांचक होता है, आँख से पानी आने शुरू हो जाते हैं। एक अद्भुत अनुभूति हृदय में होते रहते हैं, जैसा और कुछ नहीं चाहिए मेरे को जो मिलना था मिल गया, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बस उसी में वो मगन हो जाते हैं, और उसी को पकड़ के रखने के लिए वो सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस कारण से भक्त के हृदय में हमेशा वो व्याकुलता, वो व्यस्तता, उस परमात्मा को पाने के लिए 24 घंटा उसी का चिंतन, उसी के लिए सब कुछ कर्म, सब कुछ उसी के लिए हो जाते हैं। जैसा अपना लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ अपना प्रिय चीज है वो भगवान को अर्पण कर देते हैं। वो अपना प्रिय के लिए
वो सब कुछ अपने को अर्पण कर देते हैं। वो दुख तकलीफ का सब कुछ सहन कर लेते उस परमात्मा के लिए। उसको कोई दुख तकलीफ कोई असर नहीं होता है। उस परमात्मा के याद में वो दिन रात ऐसे बीत जाते हैं जैसे पता ही नहीं चलता है। हम लोग शुरू किया और इतना जल्दी मैं इस उम्र को पार कर गया। मेरे को पता ही नहीं चला युवावस्था कब आया और बार्धक्य आ गया, पता ही नहीं चला। तो इसीलिए वो समय कैसे बीत जाते हैं और किसी के पास टाइम इतना है जो वो गप सप मार के निंदा स्तुति करके अपना इधर उधर घूम फिर के वो अपना समय को नष्ट कर देते हैं। तो भक्त का हृदय में जो अनुभूति होता है प्रैक्टिकली, वो जब भक्ति आएगा तो उसका पिता माता आत्मीय स्वजन परिवार परिजन उसका विरोध हो जाएगा। जैसा प्रहलाद का हुआ। प्रहलाद जब भक्ति में भगवान का भक्ति में लीन हो गया तो सारा राक्षस कुल उसका अगेंस्ट हो गया। अपना अपना आदमी अगेंस्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भक्ति जब आपको ठीक रास्ते में चलते हैं तो अपना आसपास ही आपका शत्रु बन जाती है। लेकिन आप सबका प्रति प्यार राग देश हिंसा छोड़ के आप अपना भक्ति में ध्यान रखिए, तभी आप सब प्रकार बाधा को पार करके भक्ति का अंतिम अवस्था में पहुंच जाएंगे। इसीलिए शास्त्र में पहले ही बताया सर्व संग विवर्जितम और सर्व अहंकार विवर्जितम। इसका बहुत से बड़ा व्याख्यान है। लेकिन भक्त बनो, असली भक्त बनो, भगवान को पाने के लिए भक्त बनो। ये दुनिया का चीज पाने के लिए भक्ति मत करो। वो तो अपना प्राप्त कर्म के अनुसार मिल ही जाएगा। और भगवान का भक्ति करने से भी जो आपका मन में थोड़ा सा इच्छा कभी रखा है वो भी पूरा कर देते। जो बचपन में भी भूल से भी कोई इच्छा रखा है वो भी इच्छा भगवान पूरी कर देते। तो भगवान से मांगो मत, उसको भक्ति सही भक्ति करो और भगवान का प्रसन्न करने के लिए कर्म करो। वही तुम्हारा जीवन का सब कुछ प्राप्ति करा देगा। तो इसलिए नकली भक्ति करने से आप भी ठगोगे और कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए जो करना है एकदम सच्ची दिल से करो, तब आपका हृदय में निर्मल पवित्रता, आपको शांति सुख आनंद हमेशा प्रदान करे। ये बोल के आज सबको आशीर्वाद देते हुए संजीवनी विद्या जैसा हम लोग का अंदर और फिर वो शक्ति जागृत करते हैं। हम लोग का अंदर बहुत प्रकार विकारों को दूर करके फिर चलने का शक्ति बढ़ा देते हैं। सारा भ्रम को नष्ट करके और सच्ची मार्ग में उसको दिखाते हैं। ये भ्रम है, ये सच्ची मार्ग है। जो चलते हैं तो वो जरूर इस संसार में रहते हुए भी सब कुछ करते हुए भी सच्ची भक्ति से उसको हजार बाधा आते हुए भी उसका हृदय में हमेशा निर्मल पवित्र आनंद और शांति सुख को प्राप्ति होगा। और इसका बाधा
देते हैं भगवान आपको परिपक्व करने के लिए, कष्ट देते हैं आपका परिपक्व करने के लिए। जैसे आप बोलते हैं बहुत कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं, तो मैं वो इस सत्संग में बोल रहे थे, जैसे आँख से जलाते हैं बार बार सोना को, तो सोना को जला के एकदम खाँटी बना देते हैं। जब दिवा को जलाते हैं तो अंधेरा दूर हो जाती है, अगरबत्ती जलाते हैं तो खुशबू फैल जाती है। इसी प्रकार आपका हृदय में जो भी जलन हो रहे, जो आपको कष्ट दे रहे, दुख तकलीफ दे रहे, वो आपका जीवन का वही आपको अंधेरा को दूर करेगा, वही आपको सारी खाद को निकाल देगा। और अगरबत्ती जलने से जैसे खुशबू फैलते हैं, ऐसे सुगंध आपका जीवन का आदर्श, जीवन का व्यवहार, बातचीत जैसे सुगंध वहाँ पे फैल जाएगा। इसीलिए आप लोग अपना हृदय में निर्मल पवित्र बना के भगवान का भक्ति कीजिए, तो जरूर ये दुख तकलीफ भी हटेगा और साथ साथ आपको परमात्मा का साथ जुड़ते जाएंगे। तो यही संजीवनी है जो हम लोग का मरा हुआ चीज को फिर जीवित कर देते हैं। ये बोल के आज सबको आशीर्वाद देते हुए यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले जब कार्यक्रम होगा तो आज का जो उपस्थित सब भक्त लोग मैंने अपना उपलब्धि बताया, तो ये उपलब्धि सुन के मेरे को अच्छा लगा। जो हमारा एक बार हाथ जलने से तो सारा जिंदगी भर वो ज्ञान हो जाती है, तो भगवान को याद करके एक बार जो कोई मिरेकल देखते हैं तो वो हमेशा के लिए उसका विश्वास पक्का होना चाहिए। और कोई भी दुख तकलीफ आए तो उसको कभी भी बिछाड़ना नहीं चाहिए। एक ही विश्वास आपको हमेशा के लिए ज्ञान बन जाती है। तो हम यही चाहते हो, जो आप लोग का ज्ञान, जो अनुभूति, जो मिरेकल आपको हुआ है, उसी को पक्का बांध के रखे और हमेशा आपको भक्ति का रास्ता में चलते हुए वही आपको ताकत देगा, वही आपको बल देगा, वही आपको मार्ग दिखाएगा। ये बोल के आज समाप्त कर रहा हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सतगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदुओं की, बड़े संत बिंदुओं की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद पदायने संसार सागर तरतराय समवाये नमो नमः। अब हरिलूट होगा, आप लोग सभी सामने आ जाइए। অসীম ধন আছে তোমার, তাহে সাধনা মেটে নিতে চাও তা আমার হাতে কনায় কনায় বেটে।
অসীম ধন্ত আছে। দিয়ে রতন মণি, দিয়ে তোমার রতন মণি, আমায় করলে ধনী। এখন দ্বারে এসে ডাকো, রয়েছি দ্বার এঁটে। অসীম ধন্ত আছে তোমার তাহে সাধনা মেটে। নিতে চাও তা আমার হাতে, কনায় কনায় বেটে। অসীম ধন্ত আছে। আমায় তুমি করবে দাতা, আপনি ভিক্ষু হবে। বিশ্বভুবন মাতল রে তাই হাসির কলরবে। আমায় তুমি করবে দাতা, আপনি ভিক্ষু হবে। বিশ্বভুবন মাতল রে তাই হাসির কলরবে। তুমি রইবে না ওই রথে, নামবে ধুলা পথে। তুমি রইবে না ওই রথে, নামবে ধুলা পথে। যুগ যুগান্ত আমার সাথে চলবে হেঁটে হেঁটে। অসীম ধন্ত আছে তোমার তাহে সাধনা মেটে। নিতে চাও তা আমার হাতে, কনায় কনায় বেটে। অসীম ধন্ত আছে।